اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کی اپڈیٹ۔ اسلام کے دامن میں پناہ لینے والی عورتیں دنیا میں جتنی پرسکون نظر آتی ہیں، ایسی پرسکون کسی اور جگہ پر وہ دکھائی نہیں دیتی۔ آج بھی ماں کے قدموں کو چومنا ایک بچہ اپنی ذمہ داری اس لیے تصور کرتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اور آج بھی بہن کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے بھائی بے چین ہوتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بہن کے مقام و مرتبے کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے، اور آج بھی اپنی بیٹی کی ولادت پر خوشی اگر کوئی باپ مناتا نظر آتا ہے تو یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مغربی نعروں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی طرف سے پھیلائی جانے والی بے حیائیوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ذریعے فحاشی اور عریانیت کو جو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مذہب اسلام نے عورت کو وقار دیا، عورت کو سربلندی عطا فرمائی، عورت کو عزت کا تاج عطا کیا، آج ضرورت اس امر کی ہے اس اسلام کو فالو کیا جائے، اس اسلام کے قانون کو اپنایا جائے، اور اس اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کس طریقے سے عورتوں کی عزت اور سربلندی کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو کس طریقے سے بلند فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو کتنا بلند و بالا مقام عطا کیا۔ اور جس اسلام نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلے سے، جس اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت و سربلندی عطا فرمائی، آپ اگر تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو ایسی ہزارہ خواتین ملیں گی جنہوں نے اسلام کے سلسلے میں تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور اپنے وجود کو قانون اسلام کے خلاف گزارنے سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آج کے دور میں کوئی مسلم مرد بے چین ہے، اگر آج کے دور میں کوئی مسلم عورت بے چین ہے، اگر خوف و ہراس کے شکار ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا اسلام سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، خوف اتنا ہی دامنگیر ہوتا جائے گا۔ جسنا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں دور ہوتی جائیں گی، خشیت اتنی بڑھتی جائے گی، خوف دنیا کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا، عدم تحفظ کی وہ شکار ہوتی جائیں گی، بے قراری ان کے دروازوں پر دستک دیتی نظر آئے گی۔ لیکن جتنا ہی وہ اسلام سے قریب رہیں گی اور اسلام پابند بن کر زندگی گزاریں گی، ان کے دل سے دنیا کا خوف بھی نکل جائے گا، عدم تحفظ کا احساس بھی نکل جائے گا، بلکہ ان کی زندگی ایک پرسکون اور اطمینان بخش گزرتی دکھائی دے گی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مقدس نے ضابطہ دیا قیامت تک کے لیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سے کہا اتر جاؤ، سب زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ اکبر، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ کہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پشت انور کے اندر ان کی جتنی ذریت تھی سب کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اسلام یہ آج کا دین نہیں ہے، اسلام یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونے والا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ آفاقی دین ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر
इंसानों की जिंदगी गुजारने के लिए इंसानों को जो कानून अता किया गया वो इस्लाम की शक्ल में है। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस किताब के अंदर आये करीमा वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है, जो ये चाहता हो कि वो बेखौफ जिंदगी गुजारे, जो ये चाहता हो वो गम से बेनियाज होकर जिंदगी गुजारे, तो कुरान ने कहा फमन तबिआ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, पता ये चला जो इस्लाम को फॉलो करेगा, जो इस्लाम की पैरवी करेगा, जो इस्लाम के कानून को इख्तियार करेगा, जो इस्लाम के दस्तूर पर जिंदगी गुजारेगा, मेरा करीम उसके दिल से खौफ निकाल देगा, उसे बेगम कर देगा, उसके दिल से हिरास निकाल देगा। और तारीख बताती है कि जिसने भी तहफ्फुज़ शरीयत और तहफ्फुज़ इस्लाम के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी और पैरवी इस्लाम में जिंदगी गुजारी, उनका आलम यह है कि 22,000 के लश्कर के सामने भी वो बेखौफ नजर आते हैं, बेबाक नजर आते हैं, उनकी पेशानी पर शिकन नजर नहीं आती। ऐ ख़वातीन इस्लाम, जरा आप देखें और तारीख का मुताला करें कि औरतों ने रसूल आजम के एहसान का कितना ख्याल किया, इस्लाम के एहसान का कितना ख्याल किया। इसलिए कि औरतें जानती थीं कि उनकी विलादत के उन सरकार की विलादत से पेशतर उनकी विलादत को एक ऐब समझा जाता, उनकी पैदाइश को एक जो है वो मनहूस करार दिया जाता, और उनकी पैदाइश के बाद उनके लिए जीना मुश्किल हो जाया करता, जिंदा जमीन के अंदर बच्चियों को दफन किया जाता। मैंने कहा था कनाडा की सरजमीन पर जब मुझसे कहा गया था कि पैगंबर रहमत क्यों आए, तो मैंने जवाब में कहा था कि पैगंबर रहमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तशरीफ लाए, इसलिए कि दहशतगर्दी का मामला यह है कि आज के दुनिया के दहशतगर्द और आज के टेररिस्ट अपने बच्चों को नहीं मारते। और आज के दौर का टेररिस्ट अगर देखा जाए तो लिमिटेड टेररिस्ट मिलेंगे। आज चंद टेररिस्ट होते हैं, वो किसी और के घर पे बम गिराते हैं, वो सुसाइड बम्बर बन करके बेशुमार बेगुनाहों को कत्ल कर देते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है कि वो दूसरों के मुल्क को तबाह करते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है वो दूसरों की जानों को हलाक करते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है कि दूसरे के अमलाक को तबाह करते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है कि दूसरों की आबरू पर हाथ डालते हैं। लेकिन मेरे आका जब पैदा हुए तो हर घर में दहशतगर्द नजर आ रहा था, इसलिए कि उस दौर के दहशतगर्दों से बढ़ करके दहशतगर्द कौन हो सकता है जो अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को जमीन में दफन करता हो, उससे बड़ा दहशतगर्द कौन होगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने उस दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश की और दुनिया ने देखा कि जो बच्ची की विलादत पर अफसोस करते थे, मुस्तफा ने ऐसा निजाम कायम फरमाया कि अब जो बच्ची पैदा होती थी तो बाप मुस्कुराता था और खुशियों में मचलता था कि अल्लाह की रहमत मेरे घर में आ चुकी है। तो हुजूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तशरीफ लाए। औरतें तसव्वुरात की दुनिया के अंदर जरा सोचें कि अगर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो आज किसी घर में बच्ची की विलादत को अच्छी नजर से न देखा जाता, बच्ची की पैदाइश को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक सहाबी के घर में इस तरीके से नूर की किरण देखी, बल्कि नूर की लकीर देखी कि उनके घर से नूर निकल रहा है जो आसमान तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार इसकी क्या वजह होगी? मेरे आका ने फरमाया जाओ, जाकर देखो, हो सकता है उसके घर में किसी बच्ची की विलादत हुई हो। आप अंदाजा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा मर्तबा और मकाम औरतों के हवाले से, बच्चियों के हवाले से
सहाबा और इंसानों के दिलों के अंदर दाखिल फरमा दिया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, ऐ खवातीन इस्लाम, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुस्लिमा औरत मां बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत रख दी। अल्लाह अकबर। और हैरत होती है, आज जो है नारा लगाया जाता है कि औरत जुल्म की शिकार हो रही है, औरत ज्यादती की शिकार हो रही है। मैं कहता हूं औरत इस्लाम के दामन में जितनी महफूज है कहीं और इतनी महफूज दिखाई नहीं देगी। हां, अलबत्ता कुछ जालिम ऐसे जरूर मिलेंगे और ये कहां नहीं होते, लेकिन अक्सरियत का अगर जायजा लिया जाए, अगर अक्सरियत की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो हर घर के अंदर औरत को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इज्जत अता फरमाई है और मकाम अता फरमाया है। आइए मैं आपको बताऊं, औरतों में जब तक ये एहसास था, औरतों में जब तक कि उनका ज़मीर जिंदा था और औरतों ने जब ये महसूस कर रखा था कि हमें वकार मिला है तो इस्लाम की बुनियाद पर, हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम की बुनियाद पर, तो नतीजा ये होता कि उनके वजूद से इस्लामी अक़दार छलकते दिखाई देते। वो इस्लाम की तरफ अपने बच्चों की रहनुमाई करते, उनके बच्चे आगोश इस्लाम के अंदर और इस्लाम की माओं के अंदर, उनके गोद के अंदर परवरिश पाते दिखाई देते। आइए मैं आपको बताता हूं, मगरिबी दुनिया का जायजा लो। हैदराबाद की सरजमीन पर बसने वाली बहुत सारी औरतें जानती हैं और बहुत सारी औरतों का ताल्लुक जो है वो बाहर की दुनिया से होगा। बहुत सारों के रिश्तेदार मगरिबी दुनिया में रहते हैं, इसलिए वो अगर तहकीक करना चाहें तो तहकीक भी कर सकती हैं। मगरिबी दुनिया में जीने वाले गैर मुस्लिमों की जिंदगी का जायजा लीजिए तो आपको हैरत होगी। मां बैठी है, बाप बैठा है और मां बाप के सामने मगरिबी दुनिया के अंदर एक बच्ची अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर में दाखिल होती है। बाप की मजाल नहीं कि अपनी बेटी से पूछ सके कि ये कौन है, मां की मजाल नहीं कि अपनी बेटी से पूछ सके ये कौन है। लेकिन अल्लाह अकबर, कलेमा पढ़ने वाली बच्चियों का आलम यह है कि आज भी हया उनके दामन में है, आज भी हया उनकी जिंदगी से छलकती नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूं, कुड़ कुड़ के वो मां बाप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो मां बाप जिनका ताल्लुक इस्लाम से मजबूत है, उनकी बच्चियों का मामला यह है कि वो इस्लाम में परवरिश पाती हैं और हया की पैकर बनकर अपने मां बाप की आंखों को ठंडक पहुंचाती दिखाई देती हैं। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, औरतों में जब यह एहसास था कि इस्लाम ने हमें इज्जत अता की है, और मैं औरतों से गुजारिश करता हूं और इस शहर की बसने वाली खवातीन पढ़ी लिखी हैं, उर्दू से ताल्लुक है, दीनी किताबों से ताल्लुक है, कुरान और अहादीस का मुताला करें, सीरत की किताबों का मुताला करें तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम ने जो हुकूक और मर्तबा खवातीन को दिया है कहीं और इस तरीके से मरातिब दिखाई नहीं देते। आज अगर हमारी औरतों के घरों से और आज अगर हमारी कौम की बच्चियों के घरों से दायाने दीन जन्म नहीं लेते तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी औरतों ने इस्लाम से अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया और वो एहसान भूल चुकी इस्लाम का कि इस्लाम ही की वजह से उन्हें इज्जत और सरबुलंदी मिली है, उन्हें मकाम और मर्तबा मिला है, उन्हें इज्जत और सरबुलंदी नसीब हुई है। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत उम्मे सुलैम का वाकया कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा चाहते थे उम्मे सुलैम से निकाह करें, लेकिन अबू तलहा भी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे थे। दिल में ख्याल था उम्मे सुलैम से रिश्ता करने के सिलसिले में उम्मे सुलैम के यहां पैगाम भेजते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जानेसार सहाबिया बरजस्ता कहती हैं, अबू तलहा
तुमने रिश्ता तो भेजा है लेकिन माबूदाने बातिल की तुम परस्तिश करते हो और मैं मुसलमान हूं, मेरा रिश्ता तुमसे कैसे मुमकिन है? अगर तुम आगोश इस्लाम में कदम रख लो तो ये रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ मंजूर होगा और बल्कि यही मेहर होगी। अल्लाह अकबर। अबू तलहा ने कहा थोड़ी देर सोचने का मौका दो, लेकिन गए, गुस्ल किया और आए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद वो आगोश इस्लाम में कदम रख चुके। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया ने अपने किरदार से इस्लाम फैलाया, इसलिए कि इस्लाम रहमत का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है। दुनिया का कानून सुकून नहीं देता, खुदा का कानून सुकून देता है।